آج مورخہ 29 اپریل بروز منگل اردو میڈیا سینٹر پر تینوں طبقے کی میڈیا کو یاد کیا گیا ہے، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اور آپ کے مادھیم سے جمعیت علماء سلیمانی چوک کے پلیٹ فارم سے ملکی حالات کے پیش نظر چند اہم اور ضروری باتیں باشندگان مالیگاؤں و دھلیا اور تمام ووٹرز حضرات کو ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ 1947 کے بعد سے ابھی تک ایسا کوئی الیکشن نہیں ہوا جو اپنے اندر اتنے سارے خطرات اور اتنے سارے اندیشے سموئے ہوئے ہیں۔ یہ ملک ہندوستان میں ہونے والا پہلا الیکشن ہے جس الیکشن کی گہما گہمی پورے ملک کے ہر باشندے کو ہے۔ دھلیا اور مالیگاؤں حلقے کے تمام ووٹرز حضرات یقیناً بیدار ہیں، اس لیے کہ 10 سالوں میں ملک جس تیزی سے ایک لابی کا مرہون منت بن کر شکار ہو چکا ہے، اور اقلیتی جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ مسلسل ہراساں اور پریشان کیے جا رہے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے ایک نعرہ سنا ہوگا کہ اب کی بار 400 کے پار۔ یہ نعرہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ نعرہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری پلاننگ ہے، اسکیم ہے، سازش ہے اور کوشش ہے۔ مثال کے طور پہ اگر برسر اقتدار پارٹی کو 407 سیٹیں مل جاتی ہیں تو اس ملک کی اقلیتوں کو سب سے پہلے یہاں کی شہریت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ نمبر 2، وہ اپنی شریعت پر کما حق عمل درآمد کر نہیں سکتے، عمل پیرا ہو نہیں سکتے۔ شادی بیاہ ہے، موت میت ہے، طلاق ثلاثہ ہے، خلا ہے، عدت ہے، میراث کا معاملہ ہے، وقف بورڈ کی باتیں ہیں، اسی طریقے سے اور بھی ایسی وہ چیزیں جو ابھی اقلیتوں کو حاصل ہے۔ 407 نشستیں اگر برسر اقتدار حکومت کو مل جاتی ہے تو اقلیتوں کو ان تمام چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس کے حساب سے پورے ملک کے اندر جتنی بھی سیکولر تنظیمیں ہیں، سیکولر پارٹیز ہیں، سیکولر لیڈران ہیں، ان تمام کی یہی کوشش ہے اور یہی فکر ہے کہ یہ شرپسند عناصر، یہ فرقہ پرست تنظیمیں، یہ امن دشمن طاقتیں اور یہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی لے کر برسر اقتدار حکومت یقیناً اقلیتوں سے وہ سارے حقوق چھین لیں گی جو ابھی ان کو حاصل ہیں۔ اس لیے شہر مالیگاؤں اور دھلیا، اسی طریقے سے ان کے گرامین کے تمام ووٹرز حضرات سے جمعیت علماء سلیمانی چوک کے یہ تمام عہدیداران، ذمہ داران دردمندانہ اپیل گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ کو، آپ اپنی ووٹر یادی کو، آپ اپنے تمام ان حقوق کو یکجا کر لیں 20 مئی کے آنے سے پہلے۔ یاد رکھیے، یہ ووٹ ایک طاقت بھی ہے، ایک امانت بھی ہے۔ نہ ہمیں امانت میں خیانت کرنا ہے، نہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا ہے، نہ اپنے ووٹ کو تقسیم ہونے دینا ہے اور نہ ہی اپنے ووٹ کو ضائع ہونے دینا ہے۔ سیکولر جو طاقت ہیں، سیکولر جو لیڈران ہیں، سیکولر جو عہدیداران، امیدواران ہیں، ہمیں ان کو پوری طاقت سے ووٹ دے کر جتانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے کہ یہ سیکولر لیڈران، یہ سیکولر امیدوار اگر آتے ہیں تو شرپسند عناصر، فرقہ پرست تنظیموں کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور وہ جتنی بھی اقلیتوں کے خلاف منظم سازشیں پلاننگ کر چکے ہیں یقیناً وہ دھول اور منہ کے بل گریں گے۔ اس لیے جمعیت سلیمانی چوک آپ سے یہی اپیل گزارش کرتی ہے کہ اپنے ووٹ کا ضرور بھی ضرور استعمال کریں۔
اپنا ووٹ 100% ادا ہو، ایسی مہم چلائیں، ایسی بیداری پیدا کریں، اور وقت کے آنے سے پہلے جتنے بھی انجمن، کلبیں، ادارے، مدارس، مساجد اور مختلف طبقے کے لوگ جو جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، یہ سب کے سب 20 مئی کو اپنے آپ کو ووٹ دینے کے لیے فارغ رکھیں۔ یقین مانیے اس مرتبہ کا آپ کا ووٹ بہت ساری اہمیتوں اور بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے۔ امید ہے کہ شہر مالیگاؤں کے، دھلیا کے، اسی طریقے سے گرامین کے تمام ووٹرز حضرات جمعیت علماء سلیمانی چوک کی اس دردمندانہ اپیل کو بغور سماعت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پوری اتحاد و اتفاق کے ساتھ، پوری یکسوئی یکجٹ ہو کر سیکولر امیدوار کو اپنی قیمتی ووٹ دے کر اسے کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ حافظ۔ بہت پلاننگ ہے الحمدللہ، جمعیت ابھی سے لے کر 20 مئی تک مکمل پلاننگ کے ساتھ کام کرے گی۔ ہم نکڑ جوڑ بھی رکھیں گے، نکڑ میٹنگ بھی رکھیں گے، اسی طریقے سے اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اور جو ہے بہت سارے مساجد کے ائمہ کے ذریعے تمام ووٹرز حضرات کو ہم بیدار کریں گے کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ کسی بھی صورت میں نہ بٹنے دیں اور نہ ہی چھٹنے دیں۔ امیدواروں کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ ہمارے 2 اکابرین ہیں۔ نمبر 1 مولانا ارشد مدنی صاحب جو قومی صدر ہیں جمعیت علماء ہند کے۔ نمبر 2 مولانا محمود مدنی، جس مولانا محمود مدنی کی تنظیم اور جمعیت سے یہ جمعیت علماء سلیمانی چوک وابستہ ہے۔ ان دونوں اکابرین کا یہی موقف ہے کہ ہم اپنے سامنے دیکھیں کہ سیکولر امیدوار کون ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ آپ کی شہریت کو بچانے والا ہو اور آپ کی شریعت کو بچانے والا ہو تو بالاتفاق اسے ووٹ دے کر کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ مولانا کا بیان آیا تھا کہ بھائی جو فرقہ پرست طاقتوں کو شکست دینے والا امیدوار ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو، اگر وہ اس کو شکست دے سکتا ہے، کسی بھی مذہب، کسی بھی ذات، رنگ اور نسل کا ہو، تو اسے آپ ووٹ دیجئے۔ سیکولر پارٹیوں کو اور فرقہ پرست پارٹیوں کو ہر جگہ شکست دینے کی کوشش کی، پورے ہندوستانیوں سے انہوں نے آپ سے رابطہ کیا۔ ابھی انڈیا اتحاد کے امیدوار نے جمعیت دفتر پہنچ کر ہم لوگوں سے انہوں نے اپیل کی ہے، شعبہ طیب بچھاؤ صاحبہ نے، کہ میں انڈیا اتحاد کی امیدوار ہوں۔ تو انہوں نے کل ہم لوگوں سے اپروچ کیے، انہوں نے کہنا چاہیے کہ وعدہ کیا ہے کہ جو بنیادی طور سے شہر کا جو کام ہے اس کام کو ہم لوگ جیسا آپ لوگ چاہیں گے شہر کے لوگ، ہم ویسا کرنے کی کوشش تو ان کے حق میں اپیل جاری کی کہ ابھی نہیں؟ ابھی دیکھیے اصل میں بات ایسی ہے کہ ابھی تو مطلع ہی صاف نہیں ہوا ہے نا کہ کون کون لڑ رہے ہیں میدان میں، کون کون ہے، ابھی تو مطلع ہی صاف نہیں ہوا۔ ابھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی فارم بھرنے کا کہنا چاہیے مرحلہ چل رہا ہے، جب اس کے بعد جب سرکاری طور پر یعنی کہنا چاہیے ریلیز ہو جائے گا، کچھ لوگ فارم واپس لیں گے، کچھ لوگ جب آخر میں رہ جائیں گے جو لوگ امیدوار، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہم کھل کے عوام کے درمیان بات کریں گے، اس میں کوئی مصلحت سے کام نہیں لیں گے، پھر آپ لوگ کو ہم پھر کھل کے بات کریں گے، اور اوپر سے ہم رہنمائی لے کے میدان عمل میں نکل کے ہم جو لوگ ہیں، ہماری جمعیت کا ہمیشہ سے ایک نظریہ رہا ہے، ہم مصلحت پسند لوگ نہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پر جب جو سچ سمجھتے ہیں باہر نکلتے ہیں، میدان میں نکلتے ہیں اور بول دیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس وقت ہم باہر نکل کے بات کریں گے۔ آپ کی بات جو ہے میر جعفر، میر صادق، یہ تو ہر زمانے میں رہے ہیں اور اس مرتبہ بھی رہیں گے اور مسلمانوں کی ووٹوں کا بٹوارہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا سب کچھ روپیہ اور پیسہ ہے، چاہے ان کا ایمان، ان کی آبرو داؤ پر لگ جائے، لیکن وہ تھوڑے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی اگر وہ کھڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ مسلمانوں کی ووٹ کا بٹوارہ ہو اور سیکولر امیدوار ہار جائے، یا کم از کم کوئی ایسی طاقتیں برسر اقتدار ہو جائیں، تو اس کے لیے جمعیت سلیمانی چوک پوری ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی کہ ایسے میر جعفر، میر صادق کا چہرہ سامنے کر دیا جائے، اور جو حقیقی امیدوار ہے، جو مستحق ہے، حقدار ہے، اور جس کے ذریعے سے سنویدھان کی حفاظت ہوگی، ملک ہندوستان کے باشندگان کو امن، چین، سکون ملے گا، ایسے امیدوار کو جتانے کی جمعیت سلیمانی چوک پوری کوشش کرے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب کا بیان آیا تھا، مولانا محمود مدنی صاحب سے ابھی ہماری میٹنگ ہوئی بامبے میں، کون سے دن ہوئی قاری صاحب؟
एतवार के दिन बॉम्बे में गोवंडी मौलाना महमूद मदनी के साथ हम तमाम लोग थे। मौलाना महमूद मदनी साहब ने भी यही पैगाम दिया है मुसलमानों के लिए कि यार वोट दें, हर मुसलमान वोट दें। मौलाना के पहले मरहले में वोटिंग थी, मौलाना ने बताया कि देखो मैं वोट दे चुका हूँ और उन्होंने बताया कि मैं 6 घंटे का सफ़र करके मैंने मेरी एक वोट दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने क्या कहा, ज़ाती तौर से कहा कि 6 घंटे का सफ़र करके मैंने मेरी एक वोट दिया है। वोट इतनी अहम चीज़ है, लिहाजा तमाम मुसलमानों से मैं अपील करूँगा कि आप लोग वोट ज़रूर दें। ये ना सोचे कि मेरे एक वोट से क्या होगा, ये सोचे कि मेरी एक वोट से ही होगा जो होना है। इसलिए तमाम लोगों को वोट देना चाहिए। हमारे बड़ों की तरफ से यही बात है। वीडियोस लगेंगे, अखबारों में आएंगे, यूट्यूब चैनल पर आएंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि फिरका परस्त ताकतें एक हो सकती है आपके इस कदम की वजह से? मैंने शुरू में ही कहा था कि इस मरतबा यानी 2024 का इलेक्शन 1947 के बाद से होने वाला पहला इलेक्शन है जिसकी नौइयत और जिसकी अहमियत बहुत अलग है। इस मरतबा अगर तमाम फ़िरका परस्त ताकतें एकजुट हैं तो हम अपोजिशन में रहने वाले, हम सेकुलर लोग एकजुट क्यों नहीं हो सकते? अभी तक सियासत के लिबास से सियासत के लिबादे में जमीयत सुलेमानी चौक बोलो या यहाँ से लेकर दिल्ली तक की जमीयत ने कभी भी अपने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ नहीं किया। लेकिन अब वक्त है कि अगर हमने अपनी कौम को बताया नहीं, बेदार नहीं किया, तो फिर ये समझ लीजिए कि हमारा पूरा का पूरा ये निज़ाम दरहम बरहम होने वाला है। एक मिनट, इसके बाद जो है ना मुझे समझ में आई, एक मिनट मैं ज़रा सा उस बात को खोलना चाहता हूँ। ज़हूर भाई, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग वाज़ेह तौर से समझ लीजिए। हम अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि भाई हमारी बात कौन सी कौम सुनती है, तो उस कौम को हम बोल रहे हैं कि वोट का फ़ीसद बढ़ाओ। आज देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हर सियासी पार्टी बोल रही है कि वोट का फ़ीसद बढ़ाओ। जब हर पार्टी बोल रही है वोट का फ़ीसद बढ़ाओ, तो हम यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान की बात करने नहीं बैठे। हमारे भाई ने सवाल किया कि हमारे यहाँ पे कोई बात बोलने से फ़िरका परस्त एक हो सकते हैं, तो ऐसा हम कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई सामने वाले। हम तो हर हिंदुस्तानी को बोल रहे हैं कि वोट का फ़ीसद बढ़ाओ और इस मुल्क की बका के लिए और इस मुल्क के फ़ायदे के लिए जो लोग काम करेंगे उनको चुन के लाओ। हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें आप उसको देखते हैं क्यों हमें जो है दूर रखा जा रहा है? क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए? देखो भाई, बात यह है कि कांग्रेस ने अगर इस मुल्क में महाराष्ट्र में किसी मुसलमान को वोट नहीं दिया है तो अभी हमारी गुफ्तगू का मौजू ये नहीं है। अच्छा, और हम इस चीज़ को उस तनाजुर में ले के जाना भी नहीं चाहते। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने अर्ज़ किया कि हम हिंदू मुस्लिम की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और इस मुल्क को गंगा यमुनी तहजीब के साथ आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। इसलिए अभी इस मौजू पे हम कुछ कहना नहीं चाहते। हमारे मज़हब ने हमें हुक्म दिया है कि अगर गलत काम होता हुआ देखो किसी भी लेवल पे तो उसको अपने हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोक सकते ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा ख्याल करो। आज हाथ से रोकने का वक्त आया है तो हम आपके सामने इस कॉन्फ्रेंस की गर्ज़ व गायत को बयान किया है। 2024 का पार्लिमानी चुनाव दरअसल इस मुल्क को बचाने का चुनाव है, इस मुल्क के आइन को बचाने का चुनाव है, जमहूरियत को बचाने का चुनाव है, फासिस्ट ताकतों से इस मुल्क को और इस मुल्क के रहने वालों को बचाने का चुनाव है। इसमें ज़िम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की है। बहैसियत कौम, हम जब से ये देश आज़ाद हुआ है, जब से आज तक हम मिलजुल के रहते आए हैं। उन ताकतों के ख़िलाफ़ इस चुनाव को अहम माना जा रहा है, जो ताकतें आपस में लोगों को लड़वा रही हैं, नफ़रत का बाज़ार गर्म कर रही हैं और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं मुसलमानों को आइन के ज़रिए से पार्लियामेंट में कवानीन बना कर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। जो शहरियत तरमीमी एक्ट है उसके अंदर ही आप देख लीजिए कि अगर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, यहाँ से कोई किसी भी मज़हब के मानने वाले अगर आएंगे तो इस मुल्क में उन्हें शहरियत दे दी जाएगी मुसलमानों को छोड़कर।
अगर उनको साथ अफ़गानिस्तान में कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, बर्मा में जुल्म हो रहा है, ढाका में जुल्म हो रहा है, मालदीव में जुल्म हो रहा है, तो अगर वहाँ के रहने वाले किसी भी मज़हब के मानने वाले हिंदुस्तान आएंगे तो उनको शहरियत दी जाएगी मुसलमानों को छोड़कर। जबकि बहुत ज़्यादा जुल्म सितम बर्मा में मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, राखीने में, रंगून में इतने बड़े पैमाने पर उनकी कहना नस्ल कुशी की गई। मुसलमानों को छोड़कर ये कानून बनाने का मकसद क्या है? ये इम्तियाजी सलूक है मुसलमानों से, मुसलमानों के साथ। मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाने की कोशिश है, कौमी धारे से उनको ढकेल कर हाशिए पर डालने की कोशिश है मुसलमानों को। और कहीं ना कहीं आरएसएस और फ़िरका परस्त ताकतें ये चाहती हैं कि वो इस मुल्क को एक ऐसे रूप में दुनिया के सामने पेश करें जो उनके बहुत कहना चाहिए कि अज़ाइम है फाशिज़म और जमहूरियत के ख़िलाफ़, सेकुलरिज़म के ख़िलाफ़ उनके कुछ अज़ाइम हैं जो इस मुल्क को उस रास्ते पर डालना चाह रहे हैं। और बहुत कुछ उन्होंने इसका आगाज़ पिछले 10 वर्षों में कर दिया है। तमाम आइनी इदारों को कमज़ोर किया है, अदलिया को कमज़ोर करने की साजिशें की हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक के ख़िलाफ़ उन्होंने साजिशें की हैं। अदलिया को परेशान करने की इस हद तक कोशिश की गई कि 4 और 6 सुप्रीम कोर्ट के जज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो गए। इलेक्शन कमीशन जैसे खुद मुख्तार इदारे को उन्होंने कमज़ोर करके उसके ख़िलाफ़ साजिश की और उसको हर हाल में बेअसर करने की कोशिशें हो रही हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है अभी कि मोदी जी ने बराह रास्त मुसलमानों को निशाना बनाया अपनी तकरीर में, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला, मुसलमानों को घुसपैठिया करार दिया और मुसलमानों के ताल्लुक़ से उन्होंने इंतहाई नफ़रत अंगेज़ बातें की और मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस मुल्क में नफ़रत पैदा करने की और नफ़रत भड़काने की कोशिश की। उसके बावजूद 2000 से ज़्यादा एप्लीकेशन होने के बावजूद, कंप्लेन होने के बावजूद उन्होंने बराह रास्त मोदी को कोई, नरेंद्र मोदी को कोई नोटिस जारी नहीं किया। और उसका हल ये निकाला, ये बैलेंसिंग कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसका हल ये निकाला कि उन्होंने नोटिस जारी किया बीजेपी को बहैसियत पार्टी और उसके साथ साथ बैलेंसिंग किया कांग्रेस को भी, राहुल गांधी के बारे में नोटिस दिया और बीजेपी को मोदी के बारे में नोटिस दिया। जबकि राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। जिस कहना चाहे कानून का उल्लंघन मोदी जी ने किया था उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन करने से मजबूर नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? इसलिए कि उस आईनी कहना चाहिए कि उस आईनी ओहदे को, उस आईनी कहना चाहिए कि चीज़ को, इलेक्शन कमीशन को, आईनी इदारे को कमज़ोर कर दिया गया। वरना टी.एन. शेषन जिस वक्त थे इलेक्शन कमिश्नर, पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर उनसे कांपा करते थे और वो जब कलम करते थे और कार्रवाई करते थे तो किसी वजीर को, किसी मिनिस्टर को नहीं देखा करते थे। ये इदारा कभी इतना मजबूत भी हुआ करता था हमारा ये आईनी इदारा, और इतना खुद मुख्तार भी हुआ करता था जो आज कमज़ोर हो चुका है। इसी तरीके से अदलिया को भी मुसलसल किसी न किसी तरीके से अंदरूनी तौर से वो कमज़ोर करने की कोशिशें करते आए हैं। कई मरतबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिस कहना चाहिए जस्टिस को किसी हाई कोर्ट में लगाने के लिए और उसकी सिफारिश की, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कितनी मरतबा वज़ीर कानून और चीफ जस्टिस के बारे में बाकायदा मुनाजरा हुआ और बाकायदा उनके बयानात का तबादला हुआ। किरण रिजिजू जो वज़ीर कानून थे, वो उन्होंने कितनी मरतबा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जजों के ख़िलाफ़ बयान दिया है आवाम के अंदर जो कि गैर कानूनी है, और कितनी मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कहना चाहिए कि कितने सख्त पैगामात जारी किए। उसके बाद भी वजारत कानून ने अदलिया को हर हाल में बार बार इस 10 सालों में कमज़ोर करने की कोशिश की है और अदलिया को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश की है। ये अच्छी अलामत नहीं है एक जमहूरी मुल्क के लिए। इसलिए कि अदलिया अलग होती है, मुकन्नना अलग होती है, और ये तमाम जो जमहूरियत के चारों सुतून हैं, इनके अंदर जब फासला रहेगा तो मुल्क सही चलेगा। अगर ये चारों चीज़ें एक हो जाएगी तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मुकन्नना और अदलिया को एक करने की नापाक कोशिश आरएसएस की तरफ से और फ़िरका परस्तों की तरफ से मुसलसल की जा रही है, जिसको रोकना वक्त का तकाजा है। पूरी दुनिया के ममालिक हिंदुस्तान की जमहूरियत के ताल्लुक़ से तशवीश में मुब्तला है। आप देख लीजिए, इसके साथ साथ आरबीआई एक खुद मुख्तार इदारा है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका 1,28,00,000 रुपये का फंड जो था, जो रिजर्व फंड था, किसी नागहानी मुसीबत, जंगी हालात और किसी मुल्क के ऊपर आने वाली कोई बहुत बड़ी तबाही की सूरत हाल के लिए 1,88,00,000 रुपये का 1,28,000 करोड़ रुपये का जो बजट था, उसका रिजर्व बजट था, उसको तोड़ दिया इस हुकूमत ने। और बाकायदा वहाँ के गवर्नर के साथ उनका तनाज़ा हुआ और उसके बाद उस गवर्नर को हटा दिया उन्होंने, उस गवर्नर ने हिंदुस्तान छोड़ दिया और उसके बाद IMF में वो गवर्नर आज काम कर रहे हैं और उन्होंने रिजर्व बैंक का इतना महफूज फंड तोड़ दिया और उस पैसे को उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद मुख्तार इदारा है, हुकूमत उसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती। तो जो आइनी इदारे, जो माली इदारे, जो खुद मुख्तार इदारे हैं, जो जमहूरियत और हिंदुस्तान को बचाने के लिए ज़रूरी है, उन सब के ऊपर वार मुसलसल किया जा रहा है और सबको मुट्ठी में लेने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आज ये पैगाम दिया जा रहा है कि ये जो हुकूमत है, ये अगर आइंदा 5 साल में और आ गई, हालात और बद से बदतर होंगे। ख़ास तौर से इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हर किसी को तकलीफ़ होगी। मुसलमान को तकलीफ़ देने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, 370 हटा दिया गया, तलाक़ सलासा का मामला हुआ, आगे उनको यकसा सिविल कोड के उनके अज़ाइम में वो मुसलसल हमारे ख़िलाफ़ बयानबाजियाँ कर रही हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो सबसे पहला अगर कोई फ़र्ज़ है तो मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि इकट्ठा हों, मुत्तहिद हों और वोट करें। सबसे बड़ी ताकत जमहूरियत में उसकी डेफिनेशन और उसकी तारीफ़ ही यही है कि ये अवाम की हुकूमत है, अवाम के ज़रिए अवाम के लिए ये हुकूमत बनाई जाती है। और यहाँ पे मामला एकदम उल्टा चल रहा है। यहाँ अवाम को किसी तरीके से खातिर में नहीं लाया जा रहा है, अवाम के मफाद की तमाम चीज़ों को एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है। महंगाई के बारे में कोई कदर लगाने की कोशिश नहीं की जा रही है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम हर साल देंगे, 10 साल में इन्होंने 2-4 करोड़ नौकरियां नहीं दी हैं, जबकि हर साल इनका वादा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। उल्टा इनकी पॉलिसी है कि किसी को नौकरी देना ही नहीं है। जाहिर सी बात है, हिंदू भाई लोग भी तशवीश में, पूरे मुल्क के लोग तशवीश में, मुसलमानों को नौकरी की ज़रूरत बाद में है, दीगर कौमों को नौकरी की ज़रूरत पहले है। तो अगर इस गवर्नमेंट ने नौकरी नहीं देने की पॉलिसी अख्तियार की है और सरकारी ख़जाने को हर हाल में बचाने की पॉलिसी अख्तियार की है कि किसी को नौकरी देना ही नहीं है, किसी को पेंशन देना ही नहीं है, यही सब मुसलसल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले दीगर कौमें जिनको नौकरी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो मुतासिर होंगी। मुसलमान तो पंचर बनाकर भी अपना पेट भर लेता है, मुसलमान तो ड्राइविंग भी करके अपना पेट भर लेता है, मुसलमान तो ठेला भी लगा के अपना पेट भर लेता है, मुसलमान तो एक छोटा सा बिजनेस करके भी आगे बढ़ता है और इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा बटा लेता है। तो तमाम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आज बात आई है तो मैं कहने पर लंबे अंदाज में, जब बात मेरी लंबी हो गई, मैं मजबूर हुआ हूँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जमीयत उलमा मालेगांव की जो फ़िक्र है उसको आप लोग समझिए और आवाम तक पहुँचाइए। और आवाम से हमारी अपील है कि आज मज़हब का मामला बाद में, सबसे पहले इस मुल्क को बचाना है। हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको वोट देना है और अपने इस अधिकार के, इस जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें हमारे जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करना है, ज़मीर की आवाज़ पर इस्तेमाल करना है। पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार ने अवाम के हित का क्या काम किया है उसको देख लीजिए। मज़हब की बात बाद में और उसके बाद वोट कीजिए। हम हर मज़हब के मानने वालों से ये अपील कर रहे हैं और उसके साथ साथ ख़ास तौर से मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग खुदा के लिए इस इलेक्शन को अपनी बका का सवाल बना लीजिए। अपनी, कहना चाहे कि अपनी ज़िंदगी और मौत का, अपनी शरीयत की हिफाजत का और अपने मज़हब की हिफाजत का, अपने बाल बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत का ज़रिए समझिए और हर हाल में आप लोग वोट कीजिए। अपने घरों से खुदा के लिए निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंदाज में, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दीजिए और इस मुल्क को बचाने में अपना हिस्सा अदा कीजिए।